A very good morning to all of you, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, first of all, let me tell you one thing that I am impressed with all of you in the performance in your unit test first. So, congratulations, you all have done very good. So, now let's start this linear equations in two variables. And let me tell you one thing that linear equation means the equations that has got one power, okay, and about two variables means it will be having two variables such as x and y, a or b, p or q, not a or b but p or q, especially x and y. Okay, so let's start with this. Let us first recall what you have studied so far. Consider the following equations. So students, here's an equation 2x plus 5. So here there is only one variable named x, and the power which is there for x is x to the power 1. Okay, similarly if I write 4x plus 7 is equal to 0, so this is also a linear equation of power, a linear equation in variable 1 in one variable, where x is that single variable and the power of x is 1, therefore it is linear equation. I again repeat, okay, linear equations means the equation whose highest power variable whose variable has got the highest power, which is 1. Okay, and in one variable means only x is there, and in two variable means there are x and y both are there, such as 4x plus 7y is equal to 0. So this is linear equation in two variable, this is linear equation in one variable. Clear? Moving forward, let's say here it is written something like x plus y is equal to 176. So students, there like this is linear equation in two variable, this is linear equation in two variable. Some more examples of linear equation in two variables are 1.2s plus 3t equal to 5, p plus 4q is equal to 7, pi u plus 5v is equal to 9. पाई की वैल्यू क्या होती है, याद है ना, 22/7. और अप्रॉक्सीमेशन में अगर आप लिखना चाहो तो समथिंग लाइक दिस लिख सकते हो, 3.1432 ऐसे करके कुछ होता है. ठीक है, चलो. सो अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है. नाउ मूविंग टू द एग्जांपल्स. Here in example 1, what you have to do, write each of the following equations in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. कहने का मतलब ये है कि ये 2x plus 3y equal to 4.37 है. अब इसमें आपको इंडिकेट करना है कि क्या a है, क्या b है और क्या c है. So what you have to do, you just have to write all the things on the left hand side of the equation, such as ये जो 4.37 है इसको भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे. तो ट्रांसपोज होगा तो साइन माइनस हो जाएगा. ठीक है, 2x plus 3y minus 4.37 इज इक्वल टू 0. अब कह रहा है इस फॉर्म में लिखना है, यानी x के बगल में x का कोफिशिएंट क्या है, a है. इस वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, a है. करेक्ट. तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है इस वाली इक्वेशन में, आपको सर x का इक्वेशन x का कोफिशिएंट यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे 2 है, मीन्स कि a की वैल्यू क्या हो गई, 2. सिमिलरली y का कोफिशिएंट b है बट यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3. एंड यहाँ पे c की जो वैल्यू है प्लस c है, यहाँ पे वही c क्या है, -4.37 है. हमने यहाँ लिख दिया c इक्वल टू -4.37. सिमिलरली पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी हो जाएगा. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, which of the following as an equation in two variable. इनमें से कौन सा है जो कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है. तो मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या होगा, दो वेरिएबल्स यूज होने ही होने हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स फिगर इट आउट. इफ़ यू सी एग्जाम्पल 1 लाइक एग्जाम्पल 2 का पार्ट 1, x इक्वल टू -5. सो इसको जैसे आपने ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज अभी नहीं किया, सॉरी, तो ये जो लिखा नहीं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, क्या हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, +0 इंटू वाई इज इक्वल टू -5. अब तो बेटा देखो ये हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x भी है और y भी है ना. चलो, अब उसके बाद द नेक्स्ट इज 1x
प्लस 0y, और ये जो -5 है, ये जो -5 है, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आकर के +5 बन जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। सिमिलरली y इज इक्वल टू 2 है। अब अगर y इज इक्वल टू 2 है और x नहीं है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे कि x को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैसे ही वो 0 रह जाता है। तो 0x + 1y - 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर 2x इक्वल टू 3 की बात करें तो 2x तो है ही, बट y का 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, बेसिकली थोड़ा सा देखो मेरे को पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे विच नहीं बोला है, ये बोला राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो उसको हमको उस 2 वेरिएबल में ला के रखना है। सो दैट इज़ वाई हमने इसको यहाँ पे जो वेरिएबल मिसिंग है, x है तो y मिसिंग है, y है तो x मिसिंग है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो अगर x है और y मिसिंग है तो y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड y गिवन इक्वेशन में प्रेजेंट है एंड x मिसिंग है तो x को 0 से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे एनी हाउ। इस बेसिस पे स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 4.1 को फिनिश करना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का मतलब एक सिंपल सी बात समझना कि x की वो वैल्यू, ठीक है, अगर वो सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है तो x की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। जैसे एक इक्वेशन है, मान लो 4x प्लस वेट अ मिनट, 4x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x - 4 इज इक्वल टू 0। मैंने पूछा कि अच्छा यहाँ से आप x का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ये +4 हो जाएगा और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो स्टूडेंट्स इस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, x = 1। इसका क्या मतलब होता है समझते थोड़ा डिटेल में। यानी 4 का मल्टीप्लाई x से किया जाए, यानी x की जो भी वैल्यू है 1 से किया जाए और -4 किया जाए तो क्या आएगा, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा क्या है इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। यानी कि जहाँ से हम स्टार्ट किए थे लेफ्ट हैंड साइड से, वहाँ से हम कहाँ पहुँच गया, राइट हैंड साइड पे। करेक्ट, वहाँ से हम कहाँ पहुँच गया, राइट हैंड साइड पे। व्हाट डज इट मीन, try to understand what does it mean. It means that left hand side of the equation is equal to right hand side of the equation when we keep x equal to 1, when we put the value of x equal to 1। यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, यानी कि 0 के इक्वल हो गया ना। इसका मतलब ये कि x ही वो वैल्यू, x = 1 ही वो वैल्यू है जहाँ पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। करेक्ट, ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं कि 2x + 3y इज इक्वल टू 12, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखो समझने की बात क्या है कि यहाँ पे वी कैन हैव मोर देन वन सॉल्यूशन। क्लियर, वी कैन हैव डेफिनेटली मोर देन वन सॉल्यूशन। देखो जितने वेरिएबल हैं, करेक्ट, अगर उतना ही इक्वेशन हमारे पास है तब तो एक परफेक्ट सॉल्यूशन आएगा, एक सिंगल वैल्यू आएगी। लेकिन अगर इक्वेशन कम है, लाइक अगर 1 इक्वेशन है एंड वेरिएबल्स उसमें 2 यूज़ हुए हैं, तो वैल्यूज़ जो हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो मोर देन 1 होगा। क्लियर, जैसे अगर मैं इस गिवन की बात करूँ 2x + 3y इज इक्वल टू 12, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वी कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y एंड फॉर विच we get different values of x, and these two values of x and y will be called as the solution of the given equation। जैसे मैंने कहा different values of y, जैसे मैंने अगर y की पहली वैल्यू 0 ली तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर y हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2 यानी कि 6। सिमिलरली अगर हमने y = 3 पुट किया, जैसे हमने y = 3 पुट किया, सॉरी y = 1 हमने पुट किया, 3 नहीं, तो x की वैल्यू आ गई क्या, x की वैल्यू आ जाएगी 12 - 3/2 मीन्स 4.5। So here again we got two different values for two different values of x for different values of y. Means when we take y is equal to 0 we got x equal to 6, and when we took y equal to 1 we got x equal to 4.5. Clear? So this was all about the solution of a linear equation. Now moving further,
Now moving further, in example number third, yeah, there are some more things that I have to tell you. Just a minute. Let me scroll. Yeah, let's read from here. Okay, you have seen at least two solutions for 2x plus 3y equal to 12, that is 3 2 and 0 4, means it has taken some different values and I took some different values. So no issues. Can you find any other solution? So you will say yes, of course we can solve, because 2 यहाँ पे दिखा रहा है और मैंने 2 और निकाला, अब मैंने 2 अपने साइड से निकाला था, इन्होंने 6 0 और बता दिया. So definitely we can solve many values. So that's why we call it, we get many solutions in the following. जो भी हम एक वैल्यू पुट करेंगे x की, उसके हिसाब से दूसरी वैल्यू y की पुट आ जाएगी, फाइंड हो जाएगी. क्लियर? जैसे कि इस एग्जांपल में -5 पुट करने पे अलग वैल्यू आएगी x इक्वल टू की. देन उसके बाद अलग क्या आएगी, 22/3 आएगी. सिमिलरली y इज इक्वल टू 8/3 पे हम लोगों को कुछ और मिल रहा होगा. ठीक है. सो एक चीज़ यू गॉट टू नो कि देयर आर मैनी सॉल्यूशंस. क्लियर? सो यहाँ पे एक पॉइंट है जो थोड़ा सा इटैलिक वे में लिखा हुआ है. वी हैव टू रीड इट एंड वी हैव टू मेमोराइज इट एज वेल. क्लियर? A linear equation in two variables has infinitely many solutions. A linear equation in two variables has infinitely many solutions. Infinitely many solution means for each and every value of y we'll get different values of x. So there are n number of values. Clear? So now we can move to the example number third. Find 4 different solutions of the equation x plus 2y is equal to 6. ये जो इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसका हमको 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस जानना है, पता करना है. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट बाय इंस्पेक्शन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन फॉर, बिकॉज x, उसको ऐसे छोड़ो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करो. मैंने कहा कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हमें फाइंड करना. कितने सॉल्यूशन पता करने हैं? 4 सॉल्यूशन पता करने हैं. करेक्ट? आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने y की वैल्यू ले लिया 0. जैसे आपने y को 0 लिया, x इक्वल टू कितनी आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू? 6 आ जाएगी. इसके साथ x कितना आ गया? 6 आ गया. सिमिलरली अगर हमने y इज इक्वल टू लेट से 1 ले लिया, अगर हमने y इक्वल टू 1 ले लिया तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 बन जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 - 2 यानी कि 4 मीन्स 4. ये 2 वैल्यूज़ कैसे आई? तो आपने y 0 लिया, फिर y 1 लिया. नेक्स्ट आप क्या करो, y इज इक्वल टू -1 ले लो या फिर y इज इक्वल टू 2 ले लो, एज पर योर विश. क्लियर? डोंट फॉलो द एग्जैक्ट पैटर्न in the as given in the example. You can try your own as well. Clear? Okay. So moving to the next example 4. Find 2 solutions for each of the following equation. देखो अब वहाँ पे क्या था, 4 सॉल्यूशन पता करना था उस गिवन इक्वेशन का. यहाँ पे क्या है, 3 इक्वेशंस दिए हुए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. यहाँ पे हर इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन फाइंड करना है. प्रोसीजर इज अगेन सेम. y 0 ले लो, x क्या आ जाएगा, पहले वाले की बात कर रहे हैं भाई हम. y 0 लिए तो x कितना आ गया? 3 आ गया. फिर y 1 लिए तो x कितना आ जाएगा, फटाफट बताओ. जैसे y 1 लिए तो आ जाएगा 9/4, यानी कि 9/4 पे ही छोड़ दो, आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है इसको. ठीक है? दिस इज़ द प्रोसेस. And if you know the process, then definitely you all will be able to solve this exercise 4.2 as well. So as if now I'm giving you the homework of exercise 4.1 and 4.2. Clear? If you got any doubt, please do ask. In next lecture we'll read about this 4.3 and some plotting of graphs and all. Clear? Okay, so that's all for the day, student. Thanks a lot.